Namaskar. So this is our second lecture regarding the study of structures of monosaccharides, and today we will continue with it, and when we go further we will try to understand what is an epimer and anomer. So today's lecture is basically about understanding monosaccharide and further understanding what is epimer and anomers. So let us begin. Before we start, let us go to monosaccharide structures once again. So as you know that we have aldoses and ketosis, right? So aldoses having aldehyde as functional group, ketosis is functional group. If it has 3 carbon, then we call it trioses, we call it trioses. If 4 carbon, then tetroses. 5 carbon, pentoses. Yesterday we studied about hexoses, 6 carbon hexoses, right? So this one, especially we learned yesterday about, in the previous lecture we studied about 6 carbon sugar called glucose. So aldohexose, and that aldohexose was glucose, right? Now for ketoses we have ketohexose, and the example of ketohexose that we studied yesterday was fructose. Is that clear, everybody? Similarly, for 3 carbon sugar we have glyceraldehyde as an aldose, triose, and for ketose we have dihydroxyacetone. For tetroses we have erythrose, and for ketoses we write erythrulose. So UL is added to it, erythrulose. For pentoses we write it ribose, and for the same 5 carbon ketose we have ribulose. So you see here UL is added to it in the ketone form. So for 5 carbon, for 6 carbon we have glucose, fructose. Glucose is aldoses, fructose is ketoses. For 5 carbon we have ribose, aldo, and for 5 carbon ketone we have ribulose. For 4 carbon we have aldose as erythrose and ketose as erythrulose. For 3 carbon we have glyceraldehyde as aldoses, and for ketoses it is dihydroxyacetone. So since we have already studied about this yesterday in the previous lecture, we want to tell you how can we write the structure of these trioses, tetroses, pentoses as well, and then subsequently we will go for study of epimers and anomers. So here let us begin with trioses first. Let us begin with trioses. So in trioses you have glyceraldehyde. How will you draw this? So my main purpose is to teach you what is and how we write the structure of the things that we are teaching. So for example, if you want to write the structure of glyceraldehyde, since it is 3 carbon, just put down 3 carbon like this, and functional group is
aldehyde one CHO, and here you just go on putting HOH. Mind it, the 3 number कार्बन, 3 नंबर कार्बन पर जो हम लोग अल्टा करते थे OHH, HOH की जगह OH, यहां पर नहीं करेंगे, केवल वो ग्लूकोज के लिए लागू है। ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और डायहाइड्रोक्सीएसीटोन लिखना होगा तो ही 3 कार्बन, केवल यहां पर कीटोन ग्रुप आ जाएगा, और बाकी सब जो वैलेंसी आप पूरा करें 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में HOH जहां कुछ नहीं है वहां हाइड्रोजन दे दें। तो ये हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हो गया डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये है 3 कार्बन का शुगर, एक तरह से ट्रायोजेस का उदाहरण है। अल्डिहाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और यहां पर जो है कीटोन कंटेनिंग जो है उसका नाम हो गया डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो लास्ट से पहले वाला जो कार्बन है उसको आधार मान करके OH अगर इस साइड में है, जनरली इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो उसको लोग D नाम दिए हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड, या इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड भी कर सकते हैं। यही ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, यदि आप देखेंगे कि ये सब चीज वही है, और अगर जो लास्ट सिमेट्रिक कार्बन है, लास्ट सिमेट्रिक कार्बन ये तो लास्ट कार्बन है, लेकिन लास्ट के पहले वाला कार्बन उसमें देखिए कि OH अगर इस तरह से लिख दिया जाए, ठीक है, तो OH इधर आ गया, इसके लिए हम लोग L ग्लिसरॉल्डिहाइड ठीक है। उसी प्रकार आप चाहें तो अभी तत्काल D और L को कंसीडर ना करके केवल ग्लिसरॉल्डिहाइड और डायहाइड्रोक्सीएसीटोन को समझें। तो उसी तरह से हम लोग अब फर्दर देखेंगे कि 4 कार्बन का क्या है, तो यहाँ पर 3 कार्बन की जगह पर 4 कार्बन कर दीजिए। यहाँ पर ट्रायोज ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, टेट्रोजेस, और यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड ना लिख करके हम लोग लिखेंगे 4 कार्बन को कहते हैं इरिथ्रोज, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इरिथ्रुलोज। आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू सी हियर, तो यहाँ पर 4 कार्बन है तो आप 1 2 3 4 कर लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 कर लीजिए, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप दीजिए, यहाँ पर कीटोन ग्रुप दीजिए, और सब में आप वैलेंसी पूरा कीजिए, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में HOH डाल दीजिए, समझ रहे हैं? इस तरह से इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रोज। क्या नाम हो जाएगा, इरिथ्रोज, और इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रुलोज। सब में इसमें वैलेंसी 4 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 ऑलरेडी वैलेंसी 4 पूरा रखा होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में केवल HOH और यहाँ कुछ नहीं H, तो ये हो गया इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इस तरह से आप लोग कुछ भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल ग्लूकोज का, मोनोसैकेराइड में कुछ भी आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। किसी का मन है कि नहीं हम जो है कि 5 कार्बन का लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है, यहाँ पर इसको भी डालें, और यहाँ पर आप लिख दीजिए पेंटोजेस, 5 कार्बन दे दीजिए, इसमें 5 कार्बन, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पेंटोजेस में एल्डोपेंटोज में क्या आ जाएगा, राइबोज, और यहाँ क्या हो जाएगा तब इसका नाम राइबोलोज। राइबोज में क्या करेंगे, 5 है कार्बन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी राइबोलोज में लिखना होगा 1 2 3 4 5, केवल फर्क क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है CH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कीटोन ग्रुप, बाकी का वैलेंसी आप पूरा करें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में वैलेंसी कार्बन की 4 होनी चाहिए, यहाँ पर बाकी लिखते जाइए HOH
HOH HOH HOH, यहाँ कुछ नहीं माइनस देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, आसान है, राइबोस राइबोलोज, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर भी 4 वैल्यूज बना लीजिए, 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में HOH दे दीजिए, HOH 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 H, दैट्स इट, हो गया। तो ये हो गया राइबो, ये हो गया राइबोस, ये हो गया राइबोलोज। अब देखिए यहाँ पर जो है लास्ट के पहले वाला इधर है, तो इसको हम लोग डी राइबोस लिख देते हैं, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पर इसी तरह से सब चीज वही रहेगा, यहाँ पर इधर आ गया और यहाँ पर ऐसे बाकी सब चीज इस तरह से, इसका नाम हो गया एल राइबोस, कैपिटल डी और कैपिटल, माइंड इट, कैपिटल डी और कैपिटल, नॉट स्मॉल डी स्मॉल एल, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं, और हम लोग ऑलरेडी 6 कार्बन का भी सीख चुके हैं कि 6 कार्बन वाला को तो सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, हमको 6 वाला कार्बन का तो हम बता नहीं सकते हैं, 6 वाला कार्बन तो ऑलरेडी कल बता चुके हैं। 6 कार्बन को हम लोग हेक्सोसिस करते थे, हेक्सोसिस करते थे, और जो है कि यहाँ पर तब जो है कि यहाँ पर राइबोस की जगह पर ग्लूकोज हो जाएगा, और यहाँ पर 6 कार्बन वाला क्या करते हैं, कीटोन्स को फ्रुक्टोज करते हैं। तो इसके बारे में हमको ऑलरेडी कल बता चुके। यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे लिखें, राइट। अब आइए कि ग्लूकोज का एक बार फिर से आपको बता दें, तो बता ही देते हैं कि 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, बस कुछ मत कीजिए, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप दे दीजिए, यहाँ पर कीटोन ग्रुप दे दीजिए बस, और बाकी सब का HOH H 3 नंबर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की सोसाइटी 3 नंबर पर यहाँ पर OH लिखते हैं बस, और बाकी सब में HOH HOH HOH, और जिसकी वैलेंसी, और यहाँ पर HOH, यहाँ कुछ नहीं भेज दीजिएगा, वैलेंसी को पूरा करेंगे। यहाँ पर 3 नंबर पर उलटा हुआ है, OH HOH HOH HOH, और लास्ट में यहाँ पर H। इस तरह से ग्लूकोज फ्रुक्टोज का सीख रहे हैं आप लोग, कि मतलब कि कल का जो हम लोग केवल रेस्ट्रिक्टेड थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तक, आज हम उसको बढ़ाया कि केवल ग्लूकोज फ्रुक्टोज ही नहीं है सेकंड में, अपितु हम लोग जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोक्सीस्टोन या फिर इरेथ्रोज यूथुलोज, 5 कार्बन में पेंटोज, और 5 कार्बन में राइबोज राइबोलोज, 6 कार्बन में ग्लूकोज फ्रुक्टोज, सब है मोनोसेकेराइड में। एक बात मैं आपको बताना शायद उचित समझूंगा, चूंकि देखिए जब हम लोग डीएनए में हम लोग बोलते हैं कि कौन सा शुगर लेते हैं जी, तो डीऑक्सी राइबोज। तो देखिए राइबोज तो 5 कार्बन का है, ठीक है, 5 कार्बन का है, तो लेकिन हमको डीएनए बनाने में जो शुगर इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर का कैसे स्ट्रक्चर बना गया, तो राइबोज में पहले 5 होता है, 1 2 3 4 5, ये लिख लीजिए, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप दे दिए CH डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए HOH होना चाहिए था, HOH, यहाँ पर होना चाहिए था HOH, यहाँ पर भी होना चाहिए था HOH, और यहाँ पर भी होना चाहिए था HOH, और लास्ट में H। लेकिन 2 नंबर पर डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन हटा दिए, तो 2 नंबर कार्बन पर 1 2 3 4 5, 2 नंबर कार्बन क्या करना है हमको, ये ऑक्सीजन को हटा देना है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा, तो हट जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर होगा H डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो होता था HOH की जगह पर हो जाएगा H, ये ऑक्सीजन तो हट गया, तो ये हट गया, डीऑक्सीनेटेड हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा HH, तो यहाँ पर हो जाएगा HOH, यहाँ पर हो जाएगा HOH, यहाँ पर हो जाएगा HOH, और लास्ट में H। तो आप क्या देखते हैं कि राइबोज और 2-डीऑक्सी राइबोज में अंतर कहाँ पर है, 2 नंबर कार्बन पर है, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर HOH हो गया, राइबोज के केस में HOH हो गया, जबकि 2-डीऑक्सी राइबोज जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया HH। शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम जो आपको एक चीज बताने जा रहे हैं
अब एक कंसेप्ट हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं कि एपीमर्स, हम बोले हैं कि आज के यूनिट में हम लोग मोनोसेप्टाइड्स को पढ़ेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू एन आइसोमेरिज्म कॉल्ड एपीमर्स। तो देखिए हम लोग पहले एपीमर्स को समझने का कोशिश करें, ठीक है। तो हम समझेंगे एपीमर्स, लेकिन परिभाषित उसे पहले नहीं करेंगे, आप खुद परिभाषित करेंगे उसे कि एपीमर्स का मतलब क्या है। We are going to teach epimers, but we will not define epimers. You will define epimers after understanding what is epimer. Epimer is kind of an isomer, एक ऐसा isomer जिसमें कि